बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum students and parents. We start our class with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. This is class 7 and is the 6th video of the chapter of the science. Okay, in this chapter we start our chapter number 5 in this class. In previous class we have been completed our chapter number 4, elements and compounds. Okay students, elements. What are the elements? First of all we discuss the elements. We have discussed about the elements in previous class and the previous chapter. What are the elements? Elements are substances which cannot be broken down into simpler substances. Elements are substances which cannot be broken down into simpler substances. Okay. Now the compounds. What are the compounds? Compounds are pure substances made up of two or more than two elements which cannot be broken down into simpler substances. Compounds are pure substances which are made up of two or more than two elements which are chemically combined and cannot be broken down into and cannot be separated easily. Okay. If we take some water, okay, as you know, the water is a compound and the salt is also a compound. Okay student, as you know, the water is compound and the salt is also a compound. Okay, when we mix salt into the water, a salt solution is formed. Is the salt solution a compound? क्या ये salt solution एक compound है? In the solution of salt, okay, we make the solution of salt solution. Okay, this is the salt solution. In this solution, the salt and the water are not chemically combined. Okay, in the salt solution, the water and the salt are not chemically combined. They can be separated by physical process. So the salt solution is not a compound. It is the mixture. Is the mixture. So what are the mixtures? Mixture are substances which are made up of two or more than two elements or compounds which are not chemically combined and the constituents of mixture can be separated easily. Okay, कि हम mixtures के constituents को easily separate कर सकते हैं. Okay, जिस तरह से इसमें salt solution एक mixture है, इसमें हम salt और water के components को easily separate कर सकते हैं, तो the salt solution is a mixture. Okay, तो what are the mixtures? Mixtures made up of two or more than two substances which elements or compounds which are not chemically combined.
Mixtures are made up of two or more than two elements or compound which are not chemically combined and can be separated from each other by physical method. Clear? Examples of mixtures. Examples of mixtures. Air. Air is the mixture of different gases. Mineral water. Is also the example of mixture, and the alloys. First of all, we discuss the air. Air is the mixture of different gases. मुख्तलिफ किस्म की गैसेस आपस में मिल एयर फॉर्म करती हैं. एयर एग्जाम्पल्स ऑफ mixtures. Examples of mixtures. First, air. Air is the mixture of different gases. Mixture of gases. Different gases. This pie chart show the composition of different gas, composition of airs. Different gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide and normal gases are present in the air. Okay? In these gases, the nitrogen present in at is 78%, and it is the greatest amount of gas in the air, and the oxygen is present in the 20.95%, and the carbon dioxide gas present in 0.03%. The noble gas is present in 0.9%. तो इनमें तमाम गैसेस में सबसे ज़्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन गैस मौजूद होती है, ठीक है, और सबसे माइनर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है एयर में. और ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कि एयर को क्लीन करती है. क्लियर? Different gases, so the air is the mixture of different gases. Now the next is the mineral water. Mineral water is the mixture of different minerals. Mineral water is the mixture of different minerals like calcium, magnesium, potassium, and sodium. Okay, mineral water is also an example of the mixture, and is the mixture of different minerals like calcium, magnesium, potassium and sodium. Now the next topic is the alloy. Third, alloy. Alloy is also an example of mixture. Okay, what are the alloys? Okay, when a metal mix with other metals or non metals, they form the alloy. जब एक मेटल दूसरे मेटल के साथ या किसी दूसरे मेटल के साथ मिल जाता है तो alloys फॉर्म होते हैं. ओके, when metal combine with other metal or non metal.
they form the alloys. Example, steel, brass and bronze are the examples of alloy. Okay, steel, brass and bronze. Steel, okay, brass, steel and bronze are the examples of alloy. Alloys are more harder than the metals. For example, steel made up of, for example, steel made up of when iron mixed with carbon and other non-metals. जब आयरन दूसरे कार्बन के साथ और दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स होकर स्टील फॉर्म करता है और स्टील जो है वो आयरन के मुकाबले में ज़्यादा हार्ड होता है. क्लियर? तो alloys are formed when metals mix with other metals और नॉन मेटल्स. alloys उस वक्त फॉर्म होते हैं जब मेटल्स किसी दूसरे मेटल्स के साथ मिल जाते हैं या फिर किसी दूसरे नॉन मेटल्स के साथ मिक्स होकर alloys फॉर्म करते हैं. क्लियर? Now the next topic, distinguishing amongst elements, compounds and mixtures. This topic is distinguishing between elements, compounds and mixtures. Mix elements and compounds, the mixture. As you know, elements and compounds have specific melting point and boiling point. Okay, what are the melting point? The temperature at which any substance melt is known as its melting point. And what is the boiling point? The temperature at which the substance boil is known as its boiling point. Clear? The melting point, elements and compounds have specific melting and boiling point. Clear? But the mixtures have a range of melting and boiling points. Mixtures में के melting point और boiling point fix नहीं होते, ये change होते रहते हैं. Clear? Have a range of melting point and boiling points. Clear? Now they have elements and compounds have high densities. In elements और compounds की densities high होती हैं as compared to mixture. Have high densities, but the mixture have low densities. Have low densities. Now the elements and compounds are good conductor of heat and electricity. Clear?
elements and compounds have a specific, they have high melting, they are good conductor of heat and electricity. They are poor conductor of heat and electricity. Clear? So the elements and compounds have a specific melting point and boiling points, and they have high densities and are the good conductor of heat and electricity. Mixture have a range of melting and boiling points. Okay, they have low densities, they are the poor conductors of heat and electricity. Mixtures made up of two or more than two elements or compounds. Okay, the constituents of mixtures can be separated by physical processes. The physical processes, okay, which used to separate the constituents of mixtures known as separation techniques. Different separation techniques are used to separate the constituents of the mixtures, like filtration, evaporation, distillation, fractional distillation, and chromatography. Okay, students, different separation techniques you use to separate the constituents of the mixture. Okay, these are filtration, evaporation, distillation, fractional distillation and chromatography. We discuss them one by one. First of all, we discuss the filtration. Filtration is used to separate the insoluble solid from a liquid in a solution. insoluble solids को सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस. फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं फिल्टर पेपर्स लाइक दिस. इसमें एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल टू सेपरेट solid, insoluble solid, solid from liquid. For example, muddy water, या फिर this is the solution of salt and water. ओके, मडी वाटर. अब इसमें जो मड है, सॉल्ट, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होती. अब मडी वाटर को सॉल्ट से सेपरेशन करने के लिए टेक्निक यूज़ करेंगे फिल्ट्रेशन. लेबोरेटरीज में जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है उसके लिए इसमें फ़िल्टर पेपर यूज़ किया जाता है. फ़िल्टर पेपर से जो है उस सॉल्यूशन को पास आउट किया जाता है, मडी वाटर सॉल्यूशन को पास आउट किया जाता है, जिसके रिजल्ट में जो
सॉलिड सब्सटेंसेस सॉल्ट है वो इसके ऊपर कलेक्ट कर ली जाती है एज ए रेजिड्यू, और वाटर या लिक्विड जो है वो इसमें से पास आउट हो जाता है। We take the solution of, make the solution of muddy water, ठीक है, like this water mix पानी के अंदर थोड़े से सैंड्स डिसॉल्व करेंगे, ये हमारे पास मडी वाटर सॉल्यूशन फॉर्म हो गया। क्लियर? अब हमें इसको फिल्टर करना है, सैंड को सेपरेट करना है वाटर से, तो इसके लिए हम फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज़ करेंगे और इसके लिए हम यूज़ करेंगे फिल्टर पेपर। ओके, इस फिल्टर पेपर को हम यूज़ करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करते हैं फनल और कॉनिकल फ्लास्क। क्लियर? अब इसमें जो है फिल्टर पेपर को फोल्ड अप करेंगे, फोल्ड करने के बाद इसको फिक्स कर देंगे हम फनल में। क्लियर? हम इसको फनल में फिक्स कर देंगे लाइक दिस। क्लियर? अब इसको कॉनिकल फ्लास्क में फनल हमने रख दिया इस तरह से, ये हमने अपरेटस अरेंज कर लिया। अब हमने फिल्ट्रेशन करनी है मडी वाटर की। फिल्ट्रेशन करने के लिए जो सैंड सॉल्यूशन हमने बनाया है, ठीक है, इस मडी वाटर सॉल्यूशन को हम इसके अंदर डालेंगे। As you see, the water pass out through the filter paper in the conical flask, and the sand is collected on the filter paper as a residue. Clear? Like this. Okay. Now the next filtration, examples of filtration, other examples of filtration, colander, कॉलेंडर अपने हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने होम्स में, ठीक है। ऑयल फिल्टर, work as a filter, and the tea bags. Clear? Filtration is also used in water treatment plant. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर को साफ करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए फिल्ट्रेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। क्लियर? और इसके अलावा रॉ वाटर को इसके अलावा यूज़ किए जाते हैं सैंड फिल्टर्स, सैंड फिल्टर्स। इसमें वाटर को पास किया जाता है, रॉ वाटर को सैंड की डिफरेंट लेयर से पास किया जाता है, ठीक है, और इस तरह से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज द एवापोरेशन। एवापोरेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन सॉलिड सॉल्वेंट फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्लियर? लिक्विड सॉल्वेंट्स को, सॉलिड सॉल्वेंट्स को सॉल्यूशन से ऑब्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है एवापोरेशन की टेक्निक्स को। क्लियर? फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन में सॉल्ट एक सॉलिड सॉल्यूट है जो कि सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ होता है। सॉल्ट सॉलिड सॉल्वेंट है, सॉल्यूट है विच इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो कि डिसॉल्व हुआ होता है सॉल्वेंट में। तो सॉल्यूशन से सॉलिड सॉल्यूट को सेपरेट करने के लिए टेक्निक यूज की जाती है एवापोरेशन की।
क्लियर। एवापोरेशन में वाटर में सॉल्यूशन को हीटअप करते हैं, हीटअप करने से जो सॉल्वेंट होता है वो एवापोरेट हो जाता है और जो सॉलिड सॉल्यूट होता है वो ऐसा रेजिड्यू हमें मिल जाता है। क्लियर। लेबोरेटरीज में एवापोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं इस सेटअप को। इसमें एवापोरेटिंग डिश यूज की जाती है, ठीक है, और एक ट्राइपॉड स्टैंड यूज किया जाता है। क्लियर। अब इसमें सॉल्ट सॉल्यूशन को हीटअप किया जाता है, ठीक, एवापोरेटिंग डिश में। हीटअप करने से जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मौजूद है वो एवापोरेट होना शुरू हो जाता है। जैसे एवापोरेट होना शुरू हो जाता है, जब सारा सॉल्वेंट एवापोरेट हो जाता है तो डिश में सिर्फ सॉल्ट सॉल्यूट बाकी बचता है। इस तरह से एवापोरेशन की टेक्निक के थ्रू जो है वो सेपरेट किया जाता है सॉल्यूट को। डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन द सॉल्वेंट फ्रॉम द सॉल्यूशन, और डिस्टिलेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन द used to separate the mixtures of liquid at different boiling points. Clear? For example, salt solution. सॉल्ट सॉल्यूशन में हमने अभी एवापोरेशन में भी सॉल्ट और वाटर को सेपरेट किया गया था, लेकिन उसमें जो सॉल्वेंट था वाटर वो वेस्ट हो गया था, एनवायरनमेंट में रिलीज हो गया था। ठीक है। अब अगर हम उसको चाहते हैं कि उसको हम कलेक्ट करना चाहे वाटर को, तो उसके लिए टेक्निक यूज़ की जाती है डिस्टिलेशन की। क्लियर। डिस्टिलेशन में दरअसल लिक्विड सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से सेपरेट किया जाता है। क्लियर। और या फिर अगर डिफरेंट सॉल्यूशंस मिक्सचर्स मौजूद है तो उन मिक्सचर से सेपरेट डिफरेंट लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन की टेक्निक्स यूज़ की जाती है। ठीक है। तो डिस्टिलेशन यूज टू सेपरेट द is used to obtain the liquid solvent from a solution, or it is used to separate a mixture of liquids with different boiling points. Clear? Salt solution. अब salt solution से इसके लिए लिक्विड सॉल्वेंट को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है एक कंडेंसर। दिस सेटअप इज यूज्ड इन द लैबोरेटरीज, ठीक है, फॉर डिस्टिलेशन। This is the distillation flask and this is the condenser. कंडेंसर का टेम्परेचर लो होता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाटर वेपर्स को कंडेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है, और जो वाटर कंडेंस होता है उस वाटर को कॉनिकल फ्लास्क में कलेक्ट किया जाता है। क्लियर। तो इस एक्सपेरिमेंट को लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है, ठीक है, लिक्विड्स सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए। ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन इज हीटेड, ठीक है, इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है। द वाटर गेन्स हीट एंड चेंज इनटू स्टीम्स। द टेम्परेचर ऑफ द स्टीम शो ऑन द थर्मोमीटर एंड देन द स्टीम गोज इनटू द कंडेंसर। कंडेंसर change these steam into water vapor into लिक्विड। देखिए यहाँ पर कंडेंसर में आने के बाद ये वाटर वेपर्स जो होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस लिक्विड को या डिस्टिल्ड वाटर को कलेक्ट कर ले जाता है कॉनिकल फ्लास्क में, और इसको कहा जाता है डिस्टिलेट। क्लियर। तो सॉल्ट सॉल्यूशन को हीटअप किया जाता है डिस्टिलेशन फ्लास्क में। यहाँ पर हीटअप होने के बाद वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। स्टीम का टेम्परेचर नोट किया जाता है थर्मोमीटर पर, और ये स्टीम इंटर हो जाती है कंडेंसर में। कंडेंसर में आने के बाद स्टीम में जो वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, अपना जो है हीट लूज़ कर देते हैं। हीट लूज़ होने की वजह से वो गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर जिसको जो है डिस्टिल्ड वाटर कहा जाता है। डिस्टिल्ड वाटर जो है वो कलेक्ट किया जाता है कॉनिकल फ्लास्क में एज अ डिस्टिलेट। इस सेटअप के थ्रू लेबोरेटरीज में
सॉल्ट वाटर की डिस्टिलेशन, सॉल्ट सॉल्यूशन की डिस्टिलेशन की जाती है। इसी तरह से कुछ कंट्रीज़ में जो सी वाटर को डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू प्यूरिफाई किया जाता है और इसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा हीट की नीड होती है, ठीक है, इस वजह से जो है ये बहुत कम अप्लाई किया जाता है ये प्रोसेस। क्लियर? उसके बाद जो है डिस्टिलेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is used to fractional distillation is used to separate the mixtures of liquid with different boiling points into the different fractionating columns. Fractional distillation is used to separate the different mixtures of liquids, ठीक है, with different boiling points into the different fractionating towers. कि इसमें भी जो है mixtures of liquids को separate किया जाता है, ठीक है, separate mixtures of liquids at different boiling points, at different boiling points. Clear? और फिर इनको कलेक्ट किया जाता है डिफरेंट फ्रैक्शनेटिंग टावर्स के अंदर. फॉर एग्जाम्पल्स इसमें है क्रूड ऑयल and liquid air. Crude oil, is a mixture of different oils का मिक्सचर होता है क्रूड ऑयल, ठीक है, और इसको इस ऑयल, अब जितने भी इसके अंदर ऑयल्स मौजूद हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है. और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड ऑयल में डिफरेंट ऑयल्स का मिक्सचर्स है. इसमें पेट्रोलियम गैस, गैसोलीन, कैरोसिन, डीजल, इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल्स इंक्लूड है. क्लियर? अब इन तमाम ऑयल्स को सेपरेट करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की टेक्निक यूज़ की जाती है और इसको सबसे पहले क्रूड ऑयल को जो एक फर्नेस के अंदर हीटअप किया जाता है. अब इसके अंदर जितने भी ये ऑयल्स मौजूद हैं, ठीक है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स सबके डिफरेंट हैं. अपने बॉइलिंग पॉइंट्स पर एवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. एवापोरेट होने के बाद इनको अलग-अलग फ्रैक्शनिंग टावर के अंदर कलेक्ट कर लिया जाता है. फॉर एग्जांपल इसमें जैसे पेट्रोलियम गैस है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है. ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर एवापोरेट हो जाएगा और इसको जो है एक फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर कलेक्ट कर लिया जाएगा. उसके बाद इसी तरह से दूसरा है गैसोलीन पेट्रोल, ठीक है. इसका बॉइलिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेंटीग्रेड. 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये बॉयल होगा तो इसको सेपरेट फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर कलेक्ट कर लिया जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड जो है कैरोसिन ऑयल. इसका बॉइलिंग पॉइंट है 300 डिग्री सेंटीग्रेड. इसको ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होना शुरू होकर इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा एक अलग फ्रैक्शनेटिंग टावर के अंदर. इसी तरह से डीजल और इंडस्ट्रियल फ्यूल ऑयल्स जो है ये भी अपने बॉइलिंग पॉइंट्स पर एवापोरेट होंगे, इनको अलग फ्रैक्शनिंग टावर्स के अंदर जो है कलेक्ट कर लिया जाएगा. इस तरह से जो है मिक्सचर्स को, क्रूड ऑयल के में मौजूद तमाम ऑयल्स के मिक्सचर्स को फ्रैक्शनेटिंग टावर के थ्रू जो है वो सेपरेट कर लिया जाता है. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ लिक्विड एयर्स में liquid air is the mixture of different gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, neon, helium, ठीक है. अब लिक्विड जब इन गैसेस को सेपरेट किया जाता है और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ
gases. इसी में हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ गैसेस. इसमें फर्स्ट है नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस को जब एयर से सेपरेट करते हैं तो इसको डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन गैस इज़ यूज टू प्रिजर्व और प्रिजर्व द फूड. फूड को प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन गैस यूज़ की जाती है, या फिर जो है नाइट्रोजनस बेस्ड फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं नाइट्रोजन से के थ्रू. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज द ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज यूज इन द is filled in the oxygen cylinders. These cylinders use scuba divers for scuba diving. ठीक है. And it is used in the hospitals for the patients. Clear? Now the next is the carbon dioxide. Carbon dioxide does not help in burning. ठीक है. So it is used as a fire extinguisher. इसे आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व इन द फिजी ड्रिंक्स टू मेक इट्स फिजी. ठीक है. फिजी ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में इसे डिजॉल्व किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को. ठीक है. इसके अलावा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज एज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड यूज एज अ कूलिंग एजेंट इन द लेबोरेटरीज और अदर पर्पज. द नेक्स्ट इज द ऑर्गन. ऑर्गन गैस इज फिल्ड इन द बल्ब्स. बल्ब्स के अंदर फिल की जाती है. न्यून इज यूज इन फॉर लाइटिंग. एंड द हीलियम गैस इज लाइटर देन एयर. ठीक है. एंड इट इज फिल्ड इन द एयरशिप्स. से एयरशिप्स में यूज किया जाता है. नाउ द लास्ट सेपरेशन टेक्निक इज द क्रोमेटोग्राफी. Chromatography is used to separate, analyze, identify and separate the constituents of the mixture. ठीक है. मिक्सचर में मौजूद कॉन्स्टिट्यूट्स को सेपरेट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ की जाती है. क्लियर? क्रोमेटोग्राफी के फॉर एग्जाम्पल इंक टू सेपरेट एनालाइज and identify the constituents of mixture. For example, ink, fruit juice, food colors, and clear? Ink, fruit juice, food colors. ठीक है. Chromatography is used to find out the illegal drugs in the blood. अगर ब्लड में कोई इलीगल ड्रग्स यूज़ की जा रही हैं तो उनको फाइंड आउट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज़ की जाती है. ठीक है. और इसके अलावा अगर कोई इलीगल डाइस यूज़ की जा रही हैं फूड कलरिंग्स में तो उनको फाइंड आउट करने के लिए भी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं. क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स के लिए यूज़ करते हैं फिल्टर पेपर एज अ क्रोमेटोग्राफी पेपर. इसको फिल्टर पेपर को एज अ क्रोमेटोग्राफी पेपर यूज़ किया जाता है. ठीक है. लाइक दिस.
टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द इंक, ठीक है, इंक के कॉन्स्टिट्यूट्स को सेपरेट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स यूज़ करेंगे। इसके लिए हम जो है यूज़ करेंगे फिल्टर पेपर, ठीक है, और फिल्टर पेपर में यहाँ पर फिल्टर पेपर यूज़ करेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम एक इंक का ड्रॉप लगाएंगे लाइक दिस, इस तरह। ये क्रोमेटोग्राफी पेपर है, इस पर हमने इंक का ड्रॉप लगा लिया। अब इसमें एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन यूज़ करते हैं हम, ठीक है, एज अ सॉल्वेंट के। अब इसमें हम इस तरह से इसको अरेंज करेंगे सेटअप को, और इसमें हम अल्कोहल डालेंगे, like this. Ink is the mixture of different dyes. Some are dissolved in water and some are dissolved in alcohol. Okay. अब जो इंक के इसमें डिफरेंट डाइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर, ओके, और वो मॉलिक्यूल्स जिनके कम, वो डाइस जिनका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्पीड से फ्लो करेंगे क्रोमेटोग्राफी पेपर पर, और वो डाइस जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो स्लो स्पीड से मूव करेंगे क्रोमेटोग्राफी पर, ठीक है। कुछ टाइम के लिए हम अपने इस सेटअप को रख देंगे। आप देखें यहाँ पर जो है डाइस के मॉलिक्यूल्स ने मूव करना, फ्लो करना शुरू कर दिया है क्रोमेटोग्राफी पेपर पर। आफ्टर सम टाइम अब इंक में जितने डाइस मौजूद थी, ठीक है, वो इस क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर शो हो रही हैं। क्लियर? So chromatography is used to separate the different dyes, ठीक है, in a mixture. For example, इंक में मौजूद तमाम डाइस को सेपरेट करने के लिए जो है क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज की जाती है, और इससे शो हो जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी डाइस मौजूद है। क्लियर? So the chapter is completed. Note down the diary. Home task. Classify the following into elements, compounds, and mixture, sulfur, milk, mercury, sugar, diamond, silver, chalk,
juice, mineral salt, plastic. क्लियर? इसमें आपने इन तमाम सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करना है, ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स में। 3 कॉलम्स बना लेंगे, ठीक है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स के, ठीक है। इसमें जो एलिमेंट्स हैं उन्हें एलिमेंट्स के कॉलम में, ठीक है, जो कंपाउंड्स हैं उन्हें कंपाउंड्स में, जो मिक्सचर्स हैं उन्हें मिक्सचर्स में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। नाउ दिस इज द लेक्चर होमवर्क। लेक्चर डायरी, the copy diary, do review question 1 2 4, try it out, page 82, page 82, think tank, one, page 93, you will do these questions from your content solution of week number 6, 5, from week number 5 in your copies, okay, ठीक है। रिव्यू क्वेश्चन 1 to 6, ठीक है, try it out, page number 82, think tank 1 from page number 93. You will do these question from your content solution, ठीक है, page number 115 to 119. Okay student, hope you have got everything very well, ठीक है। Okay, this chapter has been completed. Now the next week, in the next class we will start our chapter number 5. Okay, till then take care and Allah Hafiz.